Hello, hello guys, welcome to our channel. Today we are starting the chemical effects of current, that is chapter 14 of class 8 science. Okay, so let's just start and welcome to you all at study bus. Okay, Chemical effects of electric current. Chemical effects of electric current. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? We have learned earlier that the materials, which allow electric current to pass through them, are good conductors of electricity. On the other hand, materials, which do not allow electric current to pass through them easily, are poor conductors of electricity. In class 6, we made a tester, Fig.14.1, to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do. okay. So आपने सिक्स क्लास में मेनली केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि chemical the effect that is caused by electricity on a chemical on a liquid is called chemical effect of electric current. Okay, you have elders, आपने बहुत सारे appliances से बोला होगा, आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि भींगे हाथ से ना छूने को। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर होता है और हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू देम वी कैन, मतलब कि हमको पता है वाटर से इलेक्ट्रिक करंट, और वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच नॉट अलाउड टू इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज easy or poor conductor of electricity. So there was two terms, that is good conductor and poor conductor. And poor conductor को आप insulator भी कह सकते हैं. Okay, insulator is a thing, insulator that do not conduct electricity, like rubber, wood are the examples of insulators. And the conductors are those which conduct electricity, which allow us to, which allow charge to pass through them. Okay, mainly that. और मेनली देखिए कंडक्टर इंसुलेटर का क्या होता है, आप जैसे कि आई विल 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कोई सॉल्यूशन, ठीक है, मान लो वाटर है, तो ये कंडक्ट करता है चार्ज कैरियर, ठीक है, चार्ज जी ई कैरियर, चार्ज कैरियर, ठीक है, charge carrier that can, charge carrier are those things that can carry the charge. Okay, that carry the charge, ठीक है। चार्ज कैरियर वो चीजें होती हैं जो किसी चीज को कैरी करती है। हम लोग को पता है देयर इज टू चार्ज, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे दो चार्ज होती हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। ओके, so 1 minute. Okay, there's two charge, that is positive and negative. पॉजिटिव को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ऐसे और नेगेटिव को ऐसे, और इसको बोलते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं। मेनली इसमें आयंस के बेसिस पे, और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आयन और इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आयंस, नेगेटिव पॉजिटिव। और कैसे ये वर्क करता है मैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और पुअर कंडक्टर, जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनके में चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनके में चार्ज कैरियर्स नहीं होते, सो वो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कैरी ही नहीं कर पाते, और कैरी नहीं कर पाते सो वो पास नहीं कर पाते, ठीक है। मेनली यही था, ठीक है। चार्ज कैरियर्स इन कॉन्सेप्ट में भी कॉन्सेप्ट में भी क्लियर, ओके।
तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी। Current. Chemical effects of electric current. सॉरी Your फॉर elders दैट। might have cautioned ये you फिर से against बोल touching देना। an electrical appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? We have learned earlier that the materials, which allow electric current to pass through them, are good conductors of electricity. On the other hand, materials, which do not allow electric current to pass through them easily, are poor conductors of electricity. In Class 6, we made a tester, Fig.14.1, to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. ओके। सो मेनली जो होते हैं, ठीक है, देखिए अभी पहले मैं आप लोग का कंडक्टर एंड इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है। मेनली वी फर्स्ट टेक देयर दैट इज पोर्शन, हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में, क्या होता है कंडक्टर लाइक हम लोग ले लेते हैं एक रॉड, एक मेटल रॉड, ठीक है, पीस ऑफ मेटल रॉड, पीस ऑफ मेटल रॉड, ये मान लीजिए पीस ऑफ मेटल रॉड है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ये जो है इसको अगर हम लोग एक कंपाउंड में देखेंगे तो इसके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 मिनट। चार्ज कैरियर, ठीक है, जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते रहते हैं। चार्ज कैरियर मीन्स जो कैरी करते हैं किसी भी थिंग्स को, किसी भी चार्ज को, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। जो कैरी करते हैं उनको चार्ज कैरियर बोलते हैं। और इनको हम लोग एक और चीज बोलते हैं दैट इज आयोन। आयोन समझे, इसको बोलते हैं कटायन, इसको बोलते हैं अनायन। ऑन द बेसिस ऑफ आयन इसको बोलते हैं अनायन, ठीक है। इसको बोलते हैं कटायन और इसको बोलते हैं अनायन, ठीक है। और देखिए अब बैटरी, अब हम लोग बैटरी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मेनली इसमें ये बताया कि ये आपको समझ में आ गया। और जो नेगेटिव जो इंसुलेटर होते हैं उसमें ये चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। 1 मिनट। इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं उसमें ये चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड what is charge carrier. Charge carrier are free electrons that can help us to carry the charges, that is positive or negative, और आयन भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और मेनली इसमें यही था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वी फाउंड सच एज अब क्लास 6 में हम लोग ने एक टेस्टर बनाया था जो हेल्प करता था देखने में। टेस्टर जो हेल्प करता था इलेक्ट्रिसिटी पास करने में। जैसे कि ये आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर में क्या कहा जा रहा है, ये फिगर जो है इसमें ये जो है ये मेटल है और मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो मैंने बताया। तो इसके अंदर चार्ज कैरियर्स होंगे। और ये बैटरी है, मतलब सेल है, सॉरी बैटरी मैंने बोला। ये जो डिनोट होता है ऐसे होता है, इसको ऐसे 1 मिनट
अच्छे से बना दूँ, रुक जाइए। सिंबॉलिक व्यू में इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। सिंबॉलिक व्यू में इसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है ना, हाँ ऐसे ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। सिंबॉलिक व्यू में इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। और देखिए ये जैसे बल्ब है, ठीक है, और ये वायर है जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव है। रुक जाइए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पिंक, पिंक से पॉजिटिव, और ये हो गया येलो से नेगेटिव, ठीक है। और ये जो है ये वायर है जो इससे कनेक्टेड, तो मेटल जो है उसके पास चार्ज कैरियर्स है, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। बल्ब वॉज ग्लोइंग, ठीक है, ग्लोइंग, बल्ब वॉज ग्लोइंग। और इसी में हम लोग देखते हैं, अब देखिए पुअर कंडक्टर कैसे डिस्क्राइब होता है। अब इस फिगर में आप देख रहे होंगे सब कुछ सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव सब सही जुड़ा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तार वायर भी कनेक्टेड है वैसे ही। बस एक डिफरेंस है, ये जो वायर्स थे ये जो इससे कनेक्ट है वो इससे कनेक्ट है। अब आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज कैरियर्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर ही नहीं पाते और वो अपने अंदर से उसको फ्लो करने नहीं देते, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर है। ओके, और इसी में वुड डू नॉट कंडक्ट, ऐसे ही वुड भी नहीं कंडक्ट करता। अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या वाटर करता है। पहली एंड बुजो वांट टू रिमाइंड यू दैट one should not experiment with electrical supply from the main generator and inverter, use only battery cell। ही मतलब कि ये सजेशंस दे रहे हैं दोनों, पहली बुझो सजेशंस दे रहे हैं कि हम लोग को इलेक्ट्रिक की यूज़ करना, मेरी तरफ भी यही सजेशन है, हम लोग को इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी यूज़ करना चाहिए, ना ही कि पावर हाउस, वो हम लोग के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। पावर हाउस और इन्वर्टर वाला जो आपके घर में बिजली आती है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए। अब do liquid conduct electricity? So let us find out. To test whether liquid allow to current flow through pass through it not, we can use the same figure tester which made in class 6. However, replace the cell by battery. Also using the tester should check whether it working or not. So यहाँ पे एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे? जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर, ठीक है। जॉइन द फ्री एंड्स मीन्स ये जो दो एंड्स हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड moment for more moment, this complete the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if bulb does not glow, it means that tester is not working. Mainly, sorry, it means tester is not. Can you think the possible reasons? It is a possible that connection is loose, the bulb is fused, or the cell is used up, and check connection is tight, is replace the bulb with another bulb. Now the tester is not working. If you still not working, then replace the cell with a fresh cell. Now our tester is working, let us you test the various liquid. Caution, while checking your tester, don't join your free hands for more than few seconds, otherwise cell battery will drain. It is very important, इसको पढ़ते हैं। So collect a few small plastics or rubber caps, discarded bottle and clean them, and pour a 1 teaspoon lemon juice vinegar in a 1 cap. ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट है क्लास 7 का, ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्लास 7 का। अब बताइए जरा लेमन जूस और विनेगर क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, लेकिन तब भी अगर कोई देखता है तो बताइएगा ज़रूर। लेमन जूस जो है, लेमन जूस है वो एक एसिड है। लेमन जूस कौन सा एसिड है? लेमन जूस जो है एसिड है वो है सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और जो विनेगर है उस वो भी एक एसिड है जिसमें है एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या है? एसिटिक एसिड।
ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो जो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े हैं उनको थोड़ा और इजी होगा समझने में। और वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी आपको मेजरली ये 2-3 चीज़ याद रखने हैं, कौन से एसिड कंटेन रहते हैं। तो इसमें विनेगर में कौन सी एसिड है? एसिटिक एसिड, और इसमें है लेमन जूस में सिट्रिक एसिड। ओके, सो फिर आगे क्या होता है? लेट द एंड ऑफ कैप डिप इनटू अ लेमन जूस और विनेगर and take care that the end are not more than 1 centimeter apart, but same time do bulb touch each other? Does bulb glow of tester? Does लेमन जूस और विनेगर, देखिए ये जो है ये है एक बल्ब का सिंबॉलिक, और ये है इसका सिंबॉलिक, और ये है लेमन जूस। तो अगर आपको लगता है कि बल्ब ग्लो करेगा, तो मेरे आंसर है यस, बल्ब ग्लो करेगा। क्योंकि देखिए जो एसिड होता है वो गुड कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, वो लिक्विड बिटवीन टू एंड्स। और एसिड होता है वो गुड कंडक्टर होता है, और बेस भी होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है। सॉल्ट, द थ्री लिक्विड्स आर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीनों लिक्विड, तीनों लिक्विड वो कंडक्ट करते हैं अगर इसका सॉल्यूशन हो तो। और भी अगर मे बी शायद अगर इसमें हो क्या सॉलिड फॉर्म में, तो मेनली सॉलिड फॉर्म में होता नहीं है। द मेनली सॉलिड फॉर्म में वही होता है, बस नमक होता है। नमक सॉलिड फॉर्म में नहीं कंडक्ट करेगा, ठीक है। द सर्किट ऑफ अ डी टेस्टर बिकम कंप्लीट, और ये सर्किट जो था टेस्टर का, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि आप सर्किट कंप्लीट में, सर्किट क्या होता है? सर्किट क्या होता है? सर्किट होता है एक डायग्राम, जो सर्किट होता है एक पाथ ऑफ अ फ्लोइंग करंट। पाथ एक फिक्स्ड पाथ एट विच अ करंट कैन फ्लो, that is called circuit. There was two type of circuit, that is open circuit and closed circuit. Closed circuit are those which are closed, like I take a switch there. मैं यहाँ एक स्विच लगा दूँ, मान लीजिए, रुक जाइए इसमें खिंची पिची हो गया, 1 मिनट। ये मैं यहाँ पे एक स्विच लगा दूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँ, इधर ऑन है इधर ऑफ है, ठीक है, इधर ऑफ है, ठीक है। अब मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये, सॉरी, की लगा दूँ, रुक जाइए 1 मिनट। आप इससे बहुत मुश्किल होगा, स्विच से समझाना सही नहीं है। की लगा दो, की मीन्स क्या होता है? की मीन्स ये होता है, ठीक है। की लगा दूं तो ये करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगा, तो ये हो गया एक टाइप का क्लोज सर्किट। और अगर यही मैं यहाँ पे ये हटा दूं और इसकी जगह मैं इसको इसको बस यहाँ पे कर दूं, तो ये हो गया ओपन सर्किट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। और जब ये ऐसे जॉइन रहेगा तो ये हो गया क्लोज सर्किट। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा व्हेन सर्किट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। So, when a liquid of a two ends of tester allow the electricity current to pass through, the become complete the current flow in the circuit and bulb glow. And liquid does not allow to the electric current to pass the circuit tester is not complete. The bulb does not glow. Okay? अगर लिक्विड पास करेगा तो वो कंडक्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं कंडक्ट करेगा। इन सम सिचुएशन इवन थ्रो लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। अगर ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें बल्ब नहीं जलते जबकि लिक्विड कंडक्टर है, तो क्या होता है कि या फिर बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का आपने 6 क्लास में डायग्राम पढ़ा होगा, उसके अंदर एक थिन फिलामेंट होता है जो बना रहता है टंगस्टन से, वो ब्रेक हो गया होगा, या फिर जो बैटरी होगी वो ओवर हो गई होगी। मेनली यही दो रीजंस हो सकते हैं, और या फिर कहीं से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। एंड में एक्टिविटी व्हाट यू रीजन डू यू रिमेंबर दैट वाई बल्ब इज ग्लो इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक है, जो हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड, मैंने बताया जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, जिसके बहुत हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स वाई वो टंगस्टन से बनाते हैं और बहुत थिन होता है, ठीक है। और वो हीट होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते रहते हैं, तो वो हीट होता रहता है और उसी के साथ वो ग्लो करने लगता है। However, the current through the circuit is too weak और filament does not get heated। ये भी एक रीज़न हो सकता है, या फिर ये टूटा हो, या बैटरी ओवर हो गया हो, या फिर बैटरी के पास इतना पावर नहीं हो कि वो उसको हीट कर सकते हैं। Sufficiently does not glow, okay।
So I think you understand. And uh, so moving forward, uh, so आगे क्या होता है, आगे ये sufficient is does not go, and why the current is weak, current is weak, well through material may conduct electricity, it may not conduct it easily as a metal. As a result, a circuit or tester may complete, and yet the current through it may too weak and the bulb make the glow. अगर फिर अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स उतने बल्ब का इतनी चार्ज नहीं हुई, इतनी पावर नहीं हुई कि बल्ब ग्लो कर सके। हाँ, ओके। सो ये क्या है, यू मे यूज एलईडी इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टेस्टर। हाँ, आ गया, जैसे कि यहाँ पे बैटरी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले बल्ब यूज कर सकते हैं, ये जरूर ग्लो करेंगे, ठीक है। एंड यू मे अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेक अ काइंड ऑफ टेस्ट। अब हम लोग जैसे कि अभी हम लोग जस्ट रिकॉल कर रहे हैं कि क्या पढ़ा है। अभी हम लोग ने ईटीएम इफेक्ट पढ़ लिया जो हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा था। अब हम लोग मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की तरफ, ठीक है। तो मेनली देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग बस ये दिखाना चाहते हैं, इसमें इसमें ये दिखाना चाहते हैं इस एक्टिविटी में, जैसे कि एक्टिविटी पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लाइन बाय लाइन में इसमें यही लिखा है कि जो लिक्विड है, जैसे कि ये है, अब यहाँ पे एक लिक्विड कंटेनर है और इसमें भरा है कुछ, कोई भी सब्सटेंस रख लो, ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड है, वाटर रख लो, ठीक है। वाटर भी नॉर्मल वाटर है, डिस्टिल वाटर नहीं। अब पूछो कि डिस्टिल वाटर क्या होता है, तो डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जो एकदम प्योर होता है, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होती है, उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। और ये बैटरी में डाली जाती है, ठीक है। सॉरी, बैटरी में बोल रहा हूँ, सॉरी, ये बैटरी में नहीं डाली जाती, ये यूज़ होती है शायद बैटरी में, हाँ बैटरी में नहीं डाली जाती, ठीक है। तो अब ये कंडक्ट करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और अगर हम लोग इसको ऐसे ऐसे रब कर देंगे तो ये इसका डिफ्लेक्शन, मैग्नेट नीडल का डिफ्लेक्शन, ये इधर उधर हिलेगा, जो ये शो करता है मैग्नेट के इफेक्ट। मेनली इसमें यही था, ठीक है। तो हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट और ये पढ़ लिया। अब नाउ हम लोग देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम अ टेबल 14.1 वी फाइंड सम लिक्विड दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर व्हेन फ्री एंड सफर द टेस्टर टच ईच अदर बिटवीन पहली नोन दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर। मीनिंग देखो, एयर, इसमें एक एयर के बारे में पूछ लिया। देखिए, सॉलिड कंडक्टर होता है जैसे कि मेटल होटल, लिक्विड कंडक्टर में होगा लिक्विड्स, वाटर वाटर, और एयर कंडक्टर हो ही नहीं सकता। देखो मेनली क्या होता है, अगर एयर कंडक्टर होता ना तो हम लोग कभी जिंदा नहीं होते। देखो इलेक्ट्रिसिटी है, आपका बोर्ड है, और मान लो एयर कंडक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स एयर में फ्लो होने लगेंगे, एयर में फ्लो होने लगेगा, कोई हैवी चार्ज है उसको हम लोग टच कर दिए तो हमारे तुरंत डेथ हो जाएगी। तो इम्पॉसिबल है एयर में कंडक्ट होना, और एयर में कोई ऐसा चार्ज भी नहीं है। मैंने ये क्या कर दिया, सॉरी, एयर में कोई चार्ज ही नहीं है। एयर में चार्ज भी तो रहना चाहिए कंडक्ट करने के लिए। सो एयर जो है वो कंडक्टर नहीं, ठीक है। एक्चुअली सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल दैट कैन कंडक्ट प्रेफरेबल क्लासिक मटेरियल गुड कंडक्टर पूर करने इंसुलेटर कंडक्टर, इनको इंसुलेटर वो भी कहते हैं। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ टैप वाटर, लेट अस टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डिस्टिल वाटर। मैंने बताया डिस्टिल वाटर वो वाटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिनके अंदर वो नहीं होता है। सो अब देखिए, डिस्टिल वाटर, take a 2 spoonful of distilled water in a clean and dry plastic and rubber cap of bottle. You may obtain a distilled water from a school science lab, or you will get distilled water from medical store or doctor or nurse. Use a tester for whether distilled water conduct electricity, not allow, and find distilled water conduct electricity. Dissolve pinch of common salt distilled water against it. What if? देखो मेनली इसमें क्या हो रहा है, जो डिस्टिल वाटर है वो एक ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर चार्ज नहीं होता है। तो डिस्टिल वाटर वो फर्स्ट टाइम ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर की हेल्प से देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है कि नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम इनको नो रिस्पॉन्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और सेकेंड टाइम ने इन्होंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। अब देखो
क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें से सारे चार्ज कैरियर्स और मिनरल्स रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे ही ना। इसी की वजह से उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं और ये नॉर्मल वाटर होता है, और वी यूज नॉर्मल वाटर, ओके, नॉट डिस्टिल वाटर, ओके। सो जो वाटर होता है उसमें हम लोग डिस्टिल वाटर में अगर चार्ज कैरियर ऐड कर देंगे, फिर मतलब नमक डाल दिए, सो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और करेगा तो हम लोग का बैंड बजेगा, समझे? ठीक है, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। When a salt is dissolved to a distilled water, we obtain the salt solution is conducting electricity. Because मैंने बता दिया अभी, I think you understand. The water get from sources such as hand pump, well, ponds is not pure. It may contain several salt dissolved in it, and small amount of mineral salt are naturally present in it. This water is good conductor of electricity. मैंने जैसे बोला, on the other hand, distilled water is free of salt, is poor conductor, and a small amount of mineral salt present in natural water. ये देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको याद मत रखिए, ये आपके अभी के लिए नहीं, ये दूसरे चैप्टर के लिए है कि यही हमारे को मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ओके। वी हैव फाउंड अ कॉमन सॉल्ट इन अ क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग मेनली यहाँ तक, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट naturally salt beneficial for human health, conductive so we can electrical appliances with a hand while wet hands and standing on a floor. So अब हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, कि वाटर वेट हैंड से क्यों नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग का ये चैन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो वी हैव टू फाउंड अ कॉमन सॉल्ट, make it a good conductor, sorry, what it are the substance which when dissolved in a distiller make it conducting, let us find out। no, देखो, हर चीज़ इसको कंडक्टिंग नहीं बना सकता है, ठीक है। तो टेक अ क्लीन प्लास्टिक, इसको भी देख लेते हैं। टेक अ थ्री क्लीन प्लास्टिक रबर कैप्स of a bottle, pour in a teaspoon distilled water, add a few drops of lemon juice and dilute hydrochloric acid, distill few drop of base gas, potassium later sugar distill, cap dissolve it, uh, like electricity, what is the relativity of 10? Most liquid that conduct is a solution of acid base। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में एसिड बेस एंड सॉल्ट, दैट इज मेनली, देखो, जैसे कि लेमन जूस हो गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हो गया, ये क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा हो गया, पोटेशियम आयोडीन हो गया। जो शुगर है वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसमें चार्जेस नहीं होते, ठीक है। और व्हेन इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो थ्रू देम कंडक्टिंग दस प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, और जब कंडक्ट करेगा तो इट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन अ सॉल्यूशन, वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो हम लोग 14.1 में इंट्रोडक्शन सारे पढ़ लिए। इन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसमें हम लोग ये आगे का जितना भी है थ्योरी पार्ट ये सब पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर सिर्फ 2 पार्ट में है। सो टिल देन, गुड डे, हैप्पी